Namaskar everyone. Very good morning. This is Dr. Sonali Kataria Sirohi, Sunrise Learning. And today बहुत ही ज़्यादा honor की बात है मेरे लिए that I am hosting this session जिसकी resource person, जिसकी speaker Dr. Reema Dada हैं. Dr. Reema Dada has been my mentor and has been my professor when I was doing my MD in AIMS and even when I was doing senior residency in AIMS. So what a great pleasure and honor to have you with us, Dr. Reema Dada, today for this session of Sunrise Learning Foundation, जिसका नाम है Yoga, the Pharmacy Within. And Dr. Reema Dada, I think she had some network issues. Okay, so I think we'll wait for her and we'll resume in a minute. Thank you so much, dear participants, for joining in. And we will soon be starting this session. Okay, so Dr. Reema Dada is right here with us. And to introduce Reema Dada, I would want to say that she is my senior colleague, my mentor when I was in AIMS. And she is presently working as a professor in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. And she has established the Molecular Reproduction and Genetics Laboratory over there. She is actively engaged in teaching, research, and genetic diagnostic services. उनका बहुत ज़्यादा योगदान है in research on genetics of infertility. And last 8 years, say, she has been working on the impact of yoga on the genome and epigenome. वो योगा के इफेक्ट्स को पढ़ रही हैं और उस पर रिसर्च कर रही हैं ह्यूमन जीनोम के ऊपर. And Dr. Dada has received several national and international awards. The ICMR National Award for Outstanding Contribution in the Field of Genetics. 2019 or 20 में she has received an award for excellence and innovation in yoga research award, and she also has hundreds and hundreds of publications in indexed journals of high impact, and I can go on and on and on about her awards and her research on infertility and the impact of yoga on lifestyle diseases. So let us now, without any further ado, start the session and take us to Dr. Reema Dada for showing us giving us some more insight about what can yoga do to help us manage the complex lifestyle diseases that we all are living with today. Over to you, Reema ma'am. Thank you. Thank you so much, Dr. Interact with you though on a virtual mode. I would just like to start by telling you that Sonali was one of our most intelligent. Ma'am, can you just come a little closer to the mic? Your voice is cracking. If you could come closer to the mic, that will be very helpful. Yeah, I think the net has gone here, so I'm talking on the phone. Can you hear me now? Is it clear? Little better. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I would like to just start by saying thank you, Dr. Sonali, and it's such a pleasure to interact with you, though on a virtual mode. One of the most brilliant, hardworking, and a sincere, colleague, and who's working now so selflessly to serve, in her Sunrise Learning School and the Center for Autism and Special Needs. It's really so important, and I'm really blessed that today I got a chance to interact with the parents and children who are enrolled for the Center for Autism and Special Needs. And I would like to, emphasize that in the recent decades, last 20, 30 years, we have seen an avalanche, a huge increase in the incidence of lifestyle diseases. Now, these are diseases which you can prevent, you can stop, you can slow down, and even reverse by following a healthy lifestyle. And everybody wants to take a shortcut by just taking in a pill to cure everything. But there is no poly pill. And you will see during the talk that yoga is such a poly pill that it targets every cell in the body and every mechanism which has derailed
or gone off the track and has resulted in these lifestyle diseases. So I think not only for autism or children with special needs or with one particular disorder, when you practice yoga, it benefits not only you but the entire family, because you improve the quality of life. And so I feel that not only people who have any issue, or I think everyone, whether healthy, whether diseased, with any disability, or anyone, everyone should practice yoga. Yes, Sonali, over to you. Thank you, ma'am. So before we start ma'am's talk, which is going to be about yoga and its effects on the genome, on the human genome, there is a small video that ma'am wants all of us to follow and do a little warm up exercise before we actually go to the talk. So I'm going to share that video, and it'll be very nice if each one of us can do that little exercise. Let me know if it's sharing. नमस्ते, मैं रिचा। आज हम लोग बात कर रहे हैं एएसडी से रिलेटेड इश्यूज में योग की भूमिका के बारे में। देखिए, एग्जिस्टेंस जो हमारा है वो अन्नमय, प्राणमय, धर्ममय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, उन सभी को बैलेंस कर पाने आधे घंटे की प्रैक्टिस करवा दी। और तो देखिए, जैसे अभी हम स्पेशल नीड्स शरीर है वहाँ तक वो बात पहुँचती है। अन्नमय कोश तो उनका सुधरता ही है, साथ साथ उनके जो सेंट्रल बॉडी है उस पर भी डीप लेवल में काम होता रहता है। तो इसलिए हर प्रैक्टिस को, योगा प्रैक्टिस को किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और आपने हर चीज़ पे पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हम बच्चे को थोड़ा थोड़ा रोज हर चीज़ें कराएं। जैसे सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करके उनको आपने नेक मूवमेंट्स करा दिया, शोल्डर रोटेशन करवा दिया, वेस्ट रोटेशन करवा दिया, ब्रीदिंग डिफरेंट एंड चले जाते हैं, खुद बता दिया, खुद बेहतर बन सके और बेहतर बना सके अपने बच्चों को। Okay, so this does not have. I'm going to share these videos. I'm going to share these videos after this session. Sure. I'll share these videos with all the participants. Okay, ma'am? Yeah, fine. Great. So now going over to ma'am's talk. Good morning. No. Good morning, Sonali ma'am. Charu Singh here. It's really a pleasure to deliver this talk and interact with you all. And I would like to thank Dr. Sonali Kataria for giving me this opportunity. Yes, ma'am. Hello, Charu ma'am. Any problems? No, all set. Dr. Sonali was a very clear lead at the Origins of Medical Sciences and a brilliant doctor who selflessly is now serving in this Sunshine Learning Academy. And it's indeed a pleasure to interact with all of you and share some of our research work which we are working on yoga, how it impacts the genome and the epigenome, and how it moderates the internal pharmacy. Today I will talk on basically two things: that how our unhealthy lifestyle and social habits have impacted our health, and how the entire industry is driven to manage disease rather than managing health, and how simple lifestyle changes and our awareness about how change and a mind-body intervention like yoga can profoundly impact our health. I would like to emphasize here that though we know that our genome determines our biology, the genes determine our biology, and our phenotype, our health and disease states, is very, very important to understand that the epigenome, which is also known as soft genetics or works operating above the genetic landscape, which is
governed by our environment, our lifestyle, our diet, our thoughts, whatever we do on a regular basis, that is basically our habit, actually modulate the epigenome, and it's now known and very well documented, and even our studies have shown that when we practice healthy habits, for example, when you do yoga and meditation, and when you have a plant-based diet, you switch on the gene programs which are beneficial for us. And when we have a healthy lifestyle, when we smoke or we are having fast or junk food, which is a highly inflammatory diet, that switches on gene programs which are detrimental for us because they induce inflammation, short-term inflammation. Okay, so basically this video was meant to help all of us understand कि जो डेली लाइफ की हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी डिजीजेस उन्हीं से स्टेम होती हैं. सो हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल डिजीजेस, उनके लिए जैसे कि मैम ने हमें बताया कि देयर इज नो पॉलीपिल, कोई एक दवाई या और बहुत सारी दवाइयों से वो डिजीजेस टेम्पररीली मैनेज हो सकती हैं, बट उनका एक इंटरनल परमानेंट लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल में, या फिर वो जो फार्मेसी हमारे अंदर है जो हम अनलॉक नहीं कर पाए हैं या हम कर सकते हैं, उसके बारे में आज डॉक्टर रीमा दादा मैम हमें बताने वाली हैं. वो हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं अपने अंदर, हमारे अंदर खुद एक फार्मेसी है. So to unlock that pharmacy, we are going to listen to Dr. Reema Dada's talk about yoga, and how to unlock that pharmacy that is within us. Reema ma'am? Yes, I'm just trying to see how to share my screen. Okay ma'am. Ma'am, एक rectangle होगा, rectangle में एक arrow बना होगा ऊपर. There is a small rectangle. नीचे जितने भी बटन्स है ना, हाँ नहीं वो मेरे को मैं करती हूँ अभी, वो मेरी स्लाइड्स नहीं दिख रही हैं. If you open the PPT, then you share the window. Then you share the window. Yeah, I got it. Yes ma'am. Can you see it? Not yet ma'am. वो लगता है टाइम. हाँ जी आ रहा है. Can you see it now? Yes ma'am. Yes. Okay, so today I will be telling you how yoga can help you in various lifestyle diseases, and how yoga can help you to slow down, reverse, and even stop the onset of these diseases, which are caused mainly because of our unhealthy lifestyle, like having fast food, being rather sedentary, we are not doing exercises or walking adequately per day. And because of that, there has been a huge increase in the incidence of these complex lifestyle diseases, and because of that, every year 55 million people are pushed into poverty by spending on medicines and hospitalization. And yoga will help you to change your focus from disease towards health. And my talk will show you that it is very important that we adopt a yoga lifestyle which is both on the mat and off the mat, by having food which is unprocessed, unrefined, unpackaged, and a whole plant-based food. The media is driving us more and more by these advertisements to have fast foods which are rich in trans fats, salts, and sugars. But now it's been proven beyond doubt that this food causes inflammation. वो बॉडी में सोजन पैदा करता है, और अगर हम ये रेगुलर बेसिस में खाएंगे तो ये देखा गया है कि ये खाना हमें इन्फ्लेमेशन देता है, और वो ऐसे जीन प्रोग्राम्स को स्विच ऑन करता है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करने के बाद ऑटो इम्यून डिजीजेस और इवन कैंसर तक कॉज कर सकते हैं. तो हमें अपने दिनचर्या में योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, वॉक करना और प्लांट बेस्ड फूड खाना ये बहुत जरूरी है. और चाहे ये कोई भी क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल डिजीज हो, इसको लाइफस्टाइल डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे दिनचर्या, हमारा जो रहन सहन खराब हो गया है, क्योंकि हम बहुत कम पैदल चल रहे हैं, हम बैठे बैठे सारा दिन टीवी देखते हैं, स्मोकिंग, बहुत मानसिक तनाव है जिसके कारण हमारे को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, उसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम ठीक तरह काम नहीं करता, और हमारे जो जीन्स हैं वो
एक्सप्रेशन सही टाइम पे सही मात्रा में नहीं कर पाते हैं, और हमारी उम्र जिसको हम कहते हैं हमारी एजिंग का रेट ज्यादा हो जाता है, और हम जो सोने और उठने का जो समय, जो हमारा स्लीप वेक साइकिल है, वो भी डिस्टर्ब होता है। और ये देखा गया है कि जो हमारे आंतों में कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, पर ये देखा गया जब हम ये फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा नॉन वेज फूड खाते हैं, बहुत आर्टिफिशियल स्वीट शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो उससे हमारा जो जीआईटी में जो हमारी आंतों में बैक्टीरिया हैं उनको डैमेज होता है, और ये बैक्टीरिया हमारे मेंटल वेलबींग के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे एस्थमा हो, चाहे अल्जाइमर्स हो, चाहे डिमेंशिया हो, चाहे कैंसर हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, चाहे गठिया का रोग हो, चाहे डिप्रेशन या ग्लूकोमा हो, उन सभी में ये चीजें पाई जाती हैं। और हम या कोई भी दवाई इन सारी चीजों को टारगेट नहीं कर सकता। और आज जब मैं योगा की बात कर रही हूँ तो मैं उसमें आसनास, प्राणायाम और माइंडफुलनेस पे फोकस करेंगे। आसनास तो एक बहुत छोटा पार्ट है योगा का, और उसका मेन एम ये होता है कि हम लोग ऐसे बैठ पाएं सो दैट हम ब्रीदिंग इफेक्टिवली कर पाएं, और ब्रीदिंग इफेक्टिवली करने से हम एक अपने आप को एक मेडिटेटिव स्टेट में ले जा सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। अभी आप देखोगे कि उससे क्या क्या फायदे हमारे शरीर में होते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं बात Ma'am, are you there? Okay, I think उनका नेटवर्क फिर से चला गया है। Okay, that's why she specially recorded a video in advance कि अगर कभी भी नेटवर्क जाए तो we have a video, but video की audio quality is not that good, so we'll wait for a second for her to join. अगर यहाँ पर कोई हैंड रेज कर सकते हैं तो प्लीज एक बार बताइए, क्या अभी मैम ने जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस के नाम लिए, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सम काइंड्स ऑफ आर्थराइटिस, क्या हम में से कोई पार्टिसिपेंट्स हैं who have any of these lifestyle complex diseases? They do have a genetic element, of course. There is a genetic component to it, but then multifactorial होने की वजह से वो environmental influences से ये diseases trigger होती हैं, precipitate होती हैं और amplify होती हैं. Okay, wow, very very nice. None. Okay, चारू मैम, noted. और किसी की family में, my family has a family history of hypertension, very well managed through yoga and exercises by generations. But yes, there is a family history. Okay. Side effects of technology. We are connected, but then yes, okay. Nirmala Momin, आप बताना चाहोगे what? I have got arthritis and hypertension. कौन सी arthritis है मैम? रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। Okay, rheumatoid arthritis. All right. So मॉर्निंग्स में फिंगर्स सब स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ हो जाती है। Okay. और do you also have a family history of RA? No. But hypertension, yes. Okay. All right. Yeah. Okay. Charu ma'am, would you like to tell us about your condition? You have raised a hand. Okay, thank you for your patience and thank you for waiting patiently. Unfortunately, किसी session में ऐसा होता है. Most sessions run smoothly and then there is one session जिसमें there is a network glitch. All right. She's joining.
हमारे बीच में आज हमारी योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, अंकिता मैम। अंकिता मैम सनराइज लर्निंग के स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी पिछले 5 साल से योगा करा रही हैं। एंड पहले हमें लगता था कि ऐसा लगता था, हमें भी लगता था, पेरेंट्स को भी लगता था कि बच्चे कैसे योगा करेंगे, हम कैसे सिखाएंगे कि टेक अ डीप ब्रेथ। It used to be a challenge and a very big question mark कि कैसे सिखाएंगे। अभी तो इनको इमिटेशन स्किल्स ही नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे कि अब डीप ब्रेथ लो। बट देखते 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 आई थिंक कंसिस्टेंसी वाज द की फॉर टीचिंग योगा। कंसिस्टेंसी ने काम कर दिया एंड नाउ 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स नो व्हाट इज टेकिंग अ डीप ब्रेथ। इनफैक्ट अब तो उनके कामिंग स्ट्रैटेजीज में डीप ब्रेथ इंक्लूड हो गया है। वो इंडिपेंडेंटली लेने लगते हैं, विजुअल देखते ही, कार्ड देखते ही, कामिंग स्टेप नंबर 5 टेक 5 डीप ब्रेथ्स, तो वो लेने लगते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द ग्रॉस मोटर इमिटेशंस जो योगा में होती हैं, ब्रीदिंग इमिटेशंस वाज वन थिंग व्हिच वी वर ऑलवेज नॉट श्योर कि हम कैसे सिखाएंगे, बट उन्होंने सीखा बहुत अच्छे से। एंड कुडोज टू द स्टूडेंट्स एंड टू देयर इंस्ट्रक्टर कि कंसिस्टेंसी helps indeed, it helps. एंड वन मोर थिंग, यस, जैसे कि मैं कई बार बताती हूँ ये वाली बात, शायद बहुत लोगों को पता भी होगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक रिसर्च है जो कहती है कि जब हम कोई भी नया काम अपने बच्चों को सिखाते हैं, या अपने आप को भी, किसी को भी, ह्यूमन ब्रेन को कोई भी नई स्किल सिखानी होती है, तो अगर हम लगातार उस स्किल को लगातार 66 डेज तक करते जाएंगे, कराते ही जाएंगे 66 डेज तक, तो इट टेक्स 66 डेज फॉर द ब्रेन टू डेवलप अ न्यूरल पाथवे, जिससे कि वो उसे हैबिट बना देगा, उसको ऑटोमेट कर देगा। 67th डे पे आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आफ्टर 21 डेज आपका एफर्ट कम होने लगेगा एंड बाय द 60th डे आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ऑटोमेटिक हो गया है। एंड 67th डे से यू विल नॉट हैव टू पुट इन एन एफर्ट। For example, waking up early and going for a walk. So the first 20 or 30 days can be very difficult. रोज अलार्म बजेगा, रोज आपको बहुत हरक्यूलियन एफर्ट डालना पड़ेगा उठने के लिए और जूते पहनने के लिए और बाहर जाने के लिए। बट आफ्टर दैट इट कैन गो अ लिटिल इजियर। एंड बाय 6, अगर आपने 66 डेज तक गिव अप नहीं किया, तो आपके ब्रेन का वो न्यूरल पाथवे बन चुका होगा। यू विल बी ऑन एन ऑटोमेटिक मोड देन। 67th डे पे आप अपने आप उठ के जूते पहन के आप बाहर निकल जाओगे बिफोर यू रियलाइज। सो योर ब्रेन विल टेक 66 days टू गेट दैट न्यूरल पाथवे टू मेक अ क्लियर हैबिट which cannot then easily be erased. It'll be wonderful to have that. Let me just have a word with Reema ma'am. Ankita ma'am, do you want to share something? Yes ma'am. Hello everyone, good evening. मैं अंकिता श्रीवास्तव सनराइज लर्निंग की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। जैसा कि रीमा मैम बता रहे थे हमें कि वाकई योगा हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम अगर सब ट्राई करें, आप ऐसा नहीं कि 1 घंटे से ही शुरू करो, आप लोग 10 मिनट से भी शुरू कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हमारी लाइफ में कि हम लोग वाकई अगर 10 मिनट 15 मिनट भी अपनी लाइफ के लिए, अपने खुद के लिए निकालें ना, तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। और अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारी फैमिली भी, मुझे लगता है, फिर अच्छी रहेगी। इतने सारे जो डिजीजेज हैं उनसे हम लोग मतलब बचे रहेंगे। तो प्लीज योगा, मैं अपने बच्चों के साथ सनराइज में काम कर रही हूँ, तो मुझे वाकई लगने लगा है कि बिल्कुल बच्चे सीखने लगे हैं। अभी मुझे लगता था कि कैसे सिखाऊंगी मैं अपने बच्चों के साथ, कैसे काम करूंगी, बट अब इतने दिनों से काम करते करते आज मेरा योगा सेशन था। मैंने एक नया आसन इंट्रोड्यूस किया उन्हें, बट उन्होंने इतना अच्छा ट्राई किया कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि वाकई बच्चे कर सकते हैं। तो सीख जाते हैं हमारे बच्चे, ये चीज तो डेफिनेटली है। हमें टाइम लगता है, बट हम पेशेंटली अगर उनको सिखाएंगे तो वो बच्चे जरूर सीखते हैं और हमारे लिए तो बेनिफिशियल है ही है। आप खुद भी करें और बच्चों को साथ में कराएं,
है ना। पेरेंट अगर साथ में करते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मम्मा पापा हमारे साथ कर रहे हैं, तो उन्हें और मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज ट्राई करें। और मैम आ गई हैं, ओवर टू मैम। Thank you, Ankita ma'am. Reema ma'am, please open your mic, unmute your mic. Oh God, Sonali, I was on the 19th slide. Ma'am, आप मीटिंग से एग्जिट हो गए थे. So, oh God, I don't know how that happened. Just 1 minute. Just 1 minute. Anup, एक मिनट. Anup, एक मिनट. Okay, ma'am. अनु, मुझे स्लाइड शेयर करनी है. एक सेकेंड. ये वाला ना, ये तो आ नहीं रहा. So ma'am was on her PowerPoint presentations, but she didn't realize कि वो मीटिंग से exit हो गई थी, left हो गई. कहाँ पे? Because of some network problems. एक सेकेंड. एक स्लाइड खोल दो. मैं 19 स्लाइड पे थी. नेट में भी अभी लाइट भी दिखना. ओ गॉड, और वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई. लाइट वेंट. ओहो. Sorry, the light went. That's how I got disconnected, and I didn't realize I kept speaking. Here, यहाँ पे थी, and there was a net disconnect. Okay. Yeah. Can you see my slides? मैम अभी शेयरिंग शुरू हो रहा है. कितनी देर से बोल रही थी मैम. You are on first slide now. You can shift the slide and then we can start. So Sonali, till which slide did you hear? मैम पहला ही slide था. Oh God, अच्छा ठीक है. I'll start again. Okay. From the second slide. Yes. Okay. Okay. So I'll speak in Hindi, English, both, right? Yes, ma'am. Okay. So मैं ये emphasize करना चाहती हूँ कि हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड प्लांट बेस्ड रिफाइंड फूड खाने के कारण और हमारे ये जो कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल डिजीजेस में बहुत बढ़ोतरी हुई है. और उस कारण देखा गया है जैसे कि एल्जाइमर्स, एस्थमा, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर्स, ऑटोइम्यून डिजीज, डिप्रेशन बहुत बढ़ गए हैं. और उस कारण उसके ट्रीटमेंट में और हॉस्पिटलाइजेशन में 55 मिलियन पीपल पॉवर्टी लाइन के उस रेखा के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेंडिंग इसके कारण होता है. और योगा एक ऐसी पद्धति है जो हमें डिजीज से लेकर हेल्थ तक लेकर जाती है. और हम देखते हैं कि कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमें ये लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं. और उनका एक विशेष कारण है कि हम खाना ठीक ये नहीं खा रहे हैं. जो आजकल देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर से खाना मंगा के खाते हैं जो बहुत सॉल्ट, शुगर्स, ट्रांस फैट्स और ये कलरिंग, फ्लेवरिंग एजेंट्स में रिच होता है. पर ये एक इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है जो एक दो बारी के लिए तो ठीक है, पर जब हम ये ज्यादा खाते हैं ये ऑक्सीडेटिव तनाव करता है शरीर में और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ लेके जाता है. और वो जीन्स को स्विच ऑन करता है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं. और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लगातार देखा गया है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉजेज जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड इवन कैंसर्स. तो मैं ये इस स्लाइड में मैं दिखाना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे एस्थमा हो, चाहे कैंसर हो, डिप्रेशन हो, काला मोतिया हो. मैम इफ यू विल क्लिक ऑन द स्लाइड ना जो आप दिखाना चाहते हैं तब वो आएगी स्लाइड. आप उस पर क्लिक कर दीजिए. आउटलाइन में जो लेफ्ट में स्लाइड्स है ना सारी. नहीं, मेरे तो पूरा स्लाइड शो आ रहा है. कैन यू सी दिस? Don't do it on a slide show. आप presentation. Okay. Now we are there. Yes. Okay. So okay, then I'm doing it this way, right? So in this मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि चाहे मानसिक तनाव के कारण स्ट्रेस, एंजाइटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एपोप्टोसिस जो होता है कि इनहांस सेल डेथ होती है और हमारा इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन करता है, जीन्स गलत समय पे गलत मात्रा में एक्सप्रेस करती हैं और शॉर्टर टीलोमियर जिसके कारण हमें बुढ़ापा जल्दी आता है. ये सब कारण और जो हमारा असली सोने का समय लेट होना, देर से उठना, ये सारे हमारे हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस को परसिस्टेंटली एक्टिवेट कर देता है. दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण पाया गया है कि हमारे आंतों में जो इंटेस्टाइन होती है उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत
फायदेमंद होते हैं। और परंतु ये देखा गया है कि जब हम एक रिफाइंड बहुत प्रोसेस डाइट खाते हैं, बहुत ज्यादा ये शुगरी स्वीट चीजें खाते हैं, एंटीबायोटिक्स, और हमारा स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होता है, उसके कारण ये हमारा गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण डिप्रेशन और कई ऑटो इम्यून डिजीजेस पाई गई हैं। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण ये लाइफस्टाइल डिजीजेस, चाहे ये कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज हो, डायबिटीज हो, चाहे बांझपन हो, चाहे कैंसर हो, इन सभी डिजीजेस का, या चाहे ये हार्ट डिजीज हो, इन सभी डिजीजेस में ये कॉमन अंडरलाइन फैक्टर्स पाए जाते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट है समझना कि कोई भी ऐसी पद्धति नहीं है जो इन सारी चीजों को टारगेट करे, परंतु योगा हमने देखा कि इन सारे फैक्टर्स को टारगेट करता है। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना, एक बार बस एक ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर के अंडर आप वो सीख लो, एंड देन आप देखोगे कि आपके ये सारे फैक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आता है और वो एक एक सेल पे एक्ट करता है। तो जब हम योगा की बात कर रहे हैं तो योगा से हम इंक्लूड करते हैं आसनास, प्राणायामा और मेडिटेशन। आसनास बहुत छोटा कंपोनेंट है योगा का, और उसमें मेन एम होता है कि हमारी बॉडी की अलाइनमेंट ऐसे हो कि हम ब्रीदिंग ज्यादा इफेक्टिवली कर पाएं, और उस कारण हम ये मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच पाए। आजकल हम बहुत अपने जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं कि 3-6-5 जैसे प्रैक्टिस करो, कि दिन में 3 बार प्राणायाम ये करना है, अपनी ब्रीदिंग रेट को 6 पर मिनट ले आओ और ये 5 बार करो। तो इसका हम इनको बार बार कहते हैं कि अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो, और जो भी थॉट्स आती हैं उनको आने जाने दो, और उनको बस अपने ब्रीदिंग पे अवेयरनेस बार बार लाओ। और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या हैं स्टडीज के। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी की, कि अभी ये सोचा जाता है कि जो ये बांझपन है, ये इनफर्टिलिटी है, ये फीमेल्स की प्रॉब्लम है, पर ये समझने की बात है कि आधे केसेस में मेल में ये प्रॉब्लम होती है। और इस कारण देखा गया है कि कई बार शुक्राणु का नंबर ठीक होता है, वो मोटिलिटी ठीक होती है, परंतु फिर भी उनकी डीएनए क्वालिटी नष्ट हो जाता है, वो भी हमारे रहन सहन के कारण, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, मानसिक तनाव, एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन, ये फास्ट फूड डाइट जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, नॉन वेज फूड ज्यादा खाने से, इससे भी हमारा डीएनए क्वालिटी में फर्क पड़ता है। और ये देखा गया है कि ज्यादा डीएनए होने से, ये नॉन वेज खाने से, जो जो डेवलप बच्चा पैदा मेल जो होता है वूम में, उसके जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि हमारा जो रहन सहन गलत हो गया है, शादी की एज देर से करना, फिर देर से बच्चा कंसीव करना, सेल फोन ज्यादा यूज करना, मानसिक तनाव से एक कंडीशन होती है ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा होता है। वो ऑक्सीडेटिव तनाव हमारे शुक्राणु के डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल और न्यूक्लियर डीएनए को नष्ट करता है। उससे हमारा टेस्टिकुलर एजिंग जल्दी होती है, और उससे ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है 8-hydroxy-2-deoxyguanosine, जो हमारे डीएनए को नष्ट करता है। और इस कारण ये देखा गया है कि स्पर्म क्वालिटी पुअर होने के कारण कभी कभी कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस, चाइल्डहुड कैंसर, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और डोमिनेंट जेनेटिक डिजीजेस पाई जाती हैं बच्चों में। तो ये हमने देखा कि जिन बच्चों में कैंसर था, उनके फादर्स का हमने डीएनए क्वालिटी स्टडी किया, और ये पाया कि इन लोगों में जर्म लाइन म्यूटेशंस और एपी म्यूटेशंस थी। और क्योंकि उसमें ये लेवल क्योंकि ये 8-hydroxy-2-deoxyguanosine बेस ज्यादा था, और ये होने के कारण उन फादर के स्पर्म में म्यूटेशंस और एपी म्यूटेशन ज्यादा पाई जाती हैं। और क्योंकि फादर के स्पर्म में इतना रिपेयर कैपेसिटी नहीं होता, तो ये फर्टिलाइजेशन में अगर ओवा उसको क्लियर नहीं करती, तो हम देखते हैं कि ये डीएनए डैमेज बच्चे में के हर सेल में पाया जाता है, और उस कारण उनमें म्यूटेशंस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो हमने देखा कि फादर के स्पर्म डीएनए का ऑक्सीडेटिव तनाव और डीएनए डैमेज के लेवल्स नॉर्मल से काफी ज्यादा थे। तो अब हम देखते हैं कि इससे योगा का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे डीएनए पे। तो एक तो हमने देखा कि 10 दिन के अंदर ही हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट कम हो जाता है ऑक्सीडेटिव तनाव, और स्पर्म की मोटिलिटी इंप्रूव करने लग जाती है।
WHO कहता है कि हमें 5 सर्विंग्स खानी चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ऑक्सीडेटिव तनाव कम करने के लिए, और हमारी स्टडीज ने दिखाया कि ऑक्सीडेटिव तनाव हम कम कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है, उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि योगा हमारी उन जीन की एक्सप्रेशन को ऊपर करता है जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। इन एडिशन टू दैट, हमारा जो बुढ़ापा जल्दी आता है और काफी चीजें आजकल इतनी महंगी महंगी आ रही हैं जो हमें यंग रखने के लिए हेल्प करती हैं, सोकॉल्ड हेल्प करती हैं, पर ये देखा गया है कि अगर हम योगा करें तो जो टीलोमरेज लेवल और उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिस कारण हम अपने टीलोमियर लेंथ मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो बेस थी जो मैंने आपको बताई थी, जो ये कॉज करती है डीएनए, हमारे डीएनए में अक्यूमुलेट हो जाती है डीएनए डैमेज के कारण, और जो हमारे डीएनए जो बच्चों में भी चली जा सकती है, तो ये बेस प्रैक्टिस ऑफ योगा से कम हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एंटीऑक्सीडेंट्स डीएनए में अंदर नहीं जा पाते हैं, कई जा भी पाते हैं बट बहुत हाई डोजेस में। तो हम देखते हैं योगा करने से ये जो पदार्थ होता है जो इतना डैमेज करता है डीएनए को, ये इसकी मात्रा इतनी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। और हमारी स्टडीज ने ये दिखाया है कि नॉट ओनली हमारे डीएनए के जीनोम को वो योगा इम्प्रूव करता है, पर उसके एपीजीनोम में भी इम्प्रूवमेंट आती है और उन जीन्स की मात्रा बढ़ती है जो एक हेल्दी बेबी प्रोड्यूस करने में फायदेमंद है। इन एडिशन टू दैट, ये जो ग्राफ है ये वो दिखा रहा है जो कि यहाँ पे एक एक डॉट यहाँ स्पर्म रिप्रेजेंट करता है, और जो स्पर्म इस एक्स एक्सिस के पास है वो है जिनका डीएनए क्वालिटी पुअर है, जो डीएनए क्वालिटी नष्ट हो गया है। और हम देखते हैं कि जब हम 6 महीने योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस 6 महीने बाद इतने कम हो गए हैं क्योंकि डीएनए की क्वालिटी इतनी ज्यादा इम्प्रूव कर गई है। देखो यहाँ पे 34.3% डैमेज था और अब हम देख रहे हैं 20.5% हो गया है। सो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द डीएनए क्वालिटी। और नॉट ओनली दिस, ये पाया गया है कि जिन बच्चों में कैंसर था, जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो उन पेरेंट्स में बहुत ज्यादा डिप्रेशन, मानसिक तनाव होता है, और जब वो लोग भी योगा करते हैं उनका मानसिक तनाव, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट पाते हैं। तो जैसे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं या स्पेशल नीड्स के हैं, दे मस्ट प्रैक्टिस योगा एंड द फैमिली शुड प्रैक्टिस योगा एज अ ग्रुप, सो दैट बच्चा भी उनको देख के करे। उन बच्चों में एक सब में हमें मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, तो जो पेरेंट्स करेंगे, जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे, पर जो पेरेंट्स करेंगे वो बच्चे भी साथ साथ करेंगे। तो इनको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। अब मैं एक बात करती हूँ ये ऑटो इम्यून डिजीज की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये गठिया का रोग है जिसमें नॉट ओनली हमारे जॉइंट्स डिसफिगर हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है जॉइंट्स में और बहुत पेनफुल होते हैं, पर ये गठिया का रोग हमारे मस्तिष्क को, हार्ट को, लंग्स को भी इफेक्ट करता है। और हमारी रैंडमाइज कंट्रोल स्टडीज ने ये दिखाया है कि इसमें डिजीज की सिविरिटी बहुत कम हो जाती है। और इस गठिए के रोग में ये भी देखा गया है कि इन लोगों में डिप्रेशन भी ज्यादा पाया गया है, जिस कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और ये फर्दर जॉइंट्स को डैमेज करता है। और हम देखते हैं कि कई जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, चाहे वो ये वाले हो, इंटरल्यूकिन 6, 17 या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इन सब की मात्रा कम हो जाती है योगा प्रैक्टिस करने से, और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। और ये मैंने स्लाइड इसलिए रखी दिखाने के लिए कि चाहे बांझपन हो, चाहे गठिया का रोग हो, इन सब में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और मानसिक तनाव बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है, और योगा प्रैक्टिस करने से इनके लेवल्स कम हो जाते हैं। और हमने ये फर्स्ट स्टडी है जिसने ये प्रूव किया है कि नॉट ओनली न्यूक्लियर डीएनए में योगा इम्प्रूव करता है, बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की हेल्थ भी योगा इम्प्रूव करता है, क्योंकि कई जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ता है जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंटेग्रिटी इम्प्रूव करती हैं, और कई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में बात का इंटरचेंज, जो कम्युनिकेशन होता है उसको इम्प्रूव करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर को ये बढ़ाता है, जिसके कारण हमारा एटीपी का लेवल्स बढ़ जाता है और जो ऑक्सीडेटिव तनाव कम हो जाता है। अब मैं बात करूंगी काला मोतिया की। ना काला मोतिया इज वन ऑफ द सेकंड लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस
आफ्टर कैटरैक्ट, और अगर इसको अनट्रीटेड रहा जाए तो पर्सन बिकम्स ब्लाइंड। और हमारी स्टडीज ने दिखाया कि अगर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तो उन केसेस में जब ये लोग योगा करते हैं तो हमने ये पाया कि उनके कई जीन्स जो हार्मफुल होती हैं, जैसे जो इनके रेटिनल गैंग्लियन सेल्स न्यूरॉन्स को डैमेज कर रही हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। जो जीन्स ब्लड फ्लो रेटिना में बढ़ा रही हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज 1 and 3, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। एंटी इंफ्लेमेटरी जीन्स, मेलेटोनिन, वेरियस फैक्टर्स विच प्रमोट न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब जो मस्तिष्क, जो न्यूरॉन्स को उनके साइनेप्स को, जो ग्रे मैटर को इंक्रीज करते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इस कारण हम देखते हैं कि इन लोगों में, कई लोगों को सर्जरी के लिए बोला गया था, पर जब इन्होंने योगा प्रैक्टिस किया लगातार, इनकी सर्जरी भी डेफर हो गई, पोस्टपोन हो गई, और अगर ये लगातार करते रहे इनको सर्जरी की भी जरूरत नहीं होती। पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट पहले जब आप सीखो योगा तो आप एक ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर के कारण सीखो, क्योंकि जब जैसे ये इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा होने के कारण इन लोगों को फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्टर्स नहीं करने चाहिए, कपाल भारती बहुत बहुत जेंटली करना चाहिए। सो जब भी आप किसी योगा सीखें तो एक ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर से सीखें, और ये जरूर उनको बताएं कि आपको क्या अंडरलाइन हेल्थ इश्यूज हैं। अब मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताती हूँ। डिप्रेशन एक पैंडेमिक की तरह फैल रहा है, और इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज व्हिच हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डिप्रेशन, एंड बहुत कम लोग इसके लिए अपना मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए कभी जाते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हमने इस स्टडीज में ये पाया कि नॉट ओनली योगा इज हेल्पफुल इन डिप्रेशन with other diseases जैसे infertility या rheumatoid arthritis, बट हमने पाया जिन लोगों को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, उन लोगों ने जब योगा प्रैक्टिस किया, ये भी रैंडमाइज स्टडीज थी, उसमें ये पाया गया, ये दो ग्रुप्स थे, जो ग्रे वाले वो हैं जिन्होंने योगा प्रैक्टिस किया, और ब्लैक वाले वो हैं जिन्होंने योगा नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने योगा प्रैक्टिस किया उनकी सिविरिटी कितनी कम हो गई। और ये क्यों हुआ? क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स थे, जैसे ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स, DHEA मैंने दिखाए नहीं है, जो फैक्टर्स स्पेशली दोज एरियाज में जो हमारा कॉग्निशन इंप्रूव करते हैं, हमारे सेंसरी एंड अवार्ड सेंटर्स में हमारी मेमोरी इंप्रूव करते हैं। और सेरोटोनिन की मात्रा कम होने से हमारे को डिप्रेशन होता है। और ये Okay, so I think her network is gone again, or is it just me? अंकिता मैम, आपको नहीं सुनाई दे रहा ना? No, we can't hear. No, ma'am. Audio has lapsed again. No, ma'am. Audio is left. कि चाहे हमें कोई डिजीज हो, ओके मैम जस्ट एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। सोनाली, कैन यू हियर मी? हाँ जी मैम, वो थोड़ा सा हो गया था, आप एक बार फिर से शेयर करिए। ओके, सो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी हो, चाहे बीमारी हो चाहे ना हो, अगर हम योगा करें तो हम अपने ब्रेन में एनाटॉमिकल चेंजेस ऐसे ला सकते हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस में, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सेंसरी एंड अवार्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स में, जिस कारण हमारी लर्निंग, हमारी मेमोरी, हमारी स्लीप वेक साइकिल, हम आराम से रेस्ट कर सकते हैं, हम अपना हैप्पीनेस लेवल बढ़ा सकते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉम्पिटेंस, इमोशनल रेजिलियंस बढ़ सकता है। तो योगा शुड बी प्रैक्टिस नॉट ओनली बाय अ पर्सन विद एनी हेल्थ एलिमेंट और अ पर्सन विद डिप्रेशन, बट बाय वन एंड ऑल, बिकॉज इससे हमारी लर्निंग की क्षमता, अवेयरनेस की क्षमता, माइंडफुलनेस की, और हमारे इमोशनल रेजिलियंस और मेंटल इक्वानिमिटी बढ़ती है। और अलॉन्ग विद दैट
इन्फ्लेमेशन घटता है। और ये देखा गया है कि जिन लोगों को डिप्रेशन और स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है वो ज़्यादा जल्दी एज करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी घर में कोई इंसान है जो बीमार है वो भी, और उसके जो केयर टेकर्स हैं वो भी योगा करें, क्योंकि उनको भी इतना ज़्यादा तनाव और टेंशन होती है जब घर में कोई बीमार होता है, उस कारण वो भी इससे ज्यादा अच्छी तरह जूझ सकते हैं और वो उसको हैंडल कर सकते हैं। अब आई जस्ट टॉक अबाउट डिसेबिलिटीज। जैसे कि डिसेबिलिटी कैन बी एनी इम्पेयरमेंट विच कुड बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल और सेंसरी। और ये बहुत अफेक्ट करती है इंसान को, क्योंकि उस इंसान का कॉन्फिडेंस चला जाता है, उसको पुअर सेल्फ इमेज होती है, फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी होती है, थोड़ा धीरे वो काम करते हैं तो दे फील दे आर लैगिंग बिहाइंड द अदर्स। एंड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो, योगा कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय एनीवन। मतलब चाहे ये किसी बैरियर्स को या एज को या जैसे 8 साल 6-7 साल के बच्चे के ऊपर, मेल्स फीमेल्स, कोई भी रिलीजन का इंसान हो, चाहे हमें कोई चोट हो, चाहे हमें कोई जैसे इवन गठिया के लोग जिसमें इतनी पेन और डिफिकल्टी होती है, हर कोई इंसान योगा प्रैक्टिस कर सकता है। बस कि वो पहली बार जब योगा सीखे वो किसी ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर से सीखे। और कई तरह के योगा हैं, हठ योगा जो आसनास होते हैं, कई जगह कई डिफरेंट सिस्टम्स को इम्पैक्ट करते हैं। फिजिकल लेवल पे बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ती है। जो मसल में टाइटनेस होती है वो थोड़ा लचीलापन आता है, टोन बढ़ती है मसल्स की। तो कई ऐसे आसनास हैं जो साइकोमोटर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। सो ये मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसनास हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू दिस that different types of asanas are helpful for different systems, and pranayama helps to increase your concentration, helps you to relax, it helps you to become more aware and respond to different problems rather than react and become angry. It has been seen कि जो हमारा amygdala होता है वो हमारा stress response center होता है, तो वो amygdala का साइज छोटा हो जाता है पोस्ट प्रैक्टिस ऑफ योगा, बिकॉज तुम हर चीज को आराम से समझ पाते हो, उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हो रादर देन गेटिंग एंग्री एंड रिस्पॉन्डिंग। और हमारे जो सिवियर जो हमारे को बहुत रेस्टलेसनेस होती है और बहुत हम कभी कभी बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, वो कम हो जाता है। और ये हमारे कंसंट्रेशन, अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी के लिए बहुत फायदेमंद है। अब डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन, मैंने बस एग्जांपल दिया जिसमें मसल का टोन कम हो जाता है, इनका टंग बहुत बल्की और लंबा होता है, इस कारण उनको स्पीच में डिफिकल्टीज होती हैं। और ये पाया गया कि अगर ये लोग शीतकारी, शीतली प्राणायाम करें, इनके स्पीच में बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। और योगा एज अ होल इनके सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिजिकल और इमोशनल फिटनेस को बढ़ाता है और ये उनके सेल्फ केयर बिहेवियर को प्रमोट करता है। इन एडिशन टू दैट, ऑटिज्म में जिसमें हम पाते हैं कि इम्पेयर्ड सोशल स्किल्स, वर्बल स्किल थोड़ी इम्पेयर्ड है, रेपिटेटिव और रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर है, योगा और जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में जिसमें पर्सन इनअटेंटिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है, इनमें योगा बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बट अगेन मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ, इसका अर्ली डायग्नोसिस हो, trained instructor हो और family as a whole करे, तो it will help to not only bring about bonding amongst them, better social interaction with the child, and the child will interact better, and it will help to improve the mood, attention span increase करता है, they are able to sleep better, they are able to articulate better, it helps to develop resilience, the ability to self-regulate, it reduces the stress and anxiety and the aggressive behavior, and they learn to balance themselves, learn to relax, release tension and frustrations through various techniques of yoga. So yoga is very vital because it helps to provide the perfect platform to build vital skills. So yoga के इतने ज़्यादा फायदे हैं, especially in children with special needs. It helps to bring about neuromuscular coordination, psychomotor coordination, improve self-confidence, self-sufficiency, sociability, reduces hyperactivity, it improves the appetite and helps to let them have more restful sleep, it reduces aggression, improves immunity in these people, and
in children with special needs or autistic will help to overall, I have just summarized the finding, increases concentration, attention, learning, focus, memory, improves psychomotor coordination, enhances flexibility, range of motion, locomotor skills, decreases stress, enhances emotional well-being, it reduces the biological aging and helps to improve the sleep-wake cycle. And in lifestyle diseases, as I told you, there were so many factors which were the key players in the lifestyle, chronic lifestyle diseases. If you practice yoga and meditation, it targets each of those factors. It decreases your stress, anxiety, depression. It regulates the epigenome, regulates the blood flow, helps to bring about immune homeostasis, causes parasympathetic dominance, which is very important because this is a system for rest, digestion, repair. It helps to maintain telomere length so that our biological age is lower than our chronological age. It helps to decrease inflammation and decrease oxidative stress. So I would like to end by just summarizing that it is very vital that each one of us, whether we have some issue or we don't have some issue, we should practice yoga because yoga has tremendous transformative power. It can not only help to promote health, it can prevent the onset of diseases. It can act as a powerful adjunct in the management of diseases. It can slow, stop, or reverse the diseases which are already there, and it has tremendous rehabilitative power. So I would end by just requesting all of you that practice yoga at home, do it regularly so that you can all improve health and improve your quality of life. Thank you. Ma'am, thank you so much, ma'am. It means so much coming from you. Basically, मैं ये एक बात फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि डॉक्टर रीमा दादा, whatever she is talking to us about yoga, जो भी उन्होंने अभी शेयर किया, वो किसी किताब से या आर्टिकल से पढ़ के नहीं बता रही हैं. She is herself a laboratory. She has herself done this research in her laboratory and proved it and shown it to the world. उनके पब्लिकेशंस पूरी दुनिया पढ़ रही है और ये सारी रिसर्च एम्स की लैब्स में की जा रही है अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ डॉक्टर रीमा दादा. देयर इज अ ह्यूज जेनेटिक्स लैब इन एम्स that is being overlooked and supervised by रीमा मैम, जो सारी रिसर्च अपनी खुद करती है. मेरी जो भी जेनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है, थैंक्स टू रीमा दादा मैम. सो बेसिकली मैम ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि योगा करने के बाद BDNF बढ़ा है. उन्होंने खुद से जो भी चीजें उन्होंने हमें बताई हैं वो रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है. That is scientifically validated, proven and published data that she is showing कि जो ऐसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज हो रहे हैं ब्रेन में जिससे हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग एबिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं. एंड जैसे मैम आपने एमिगडाला की बात की, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में एक डिफिकल्टी, चैलेंज जो हमारे ऑटिस्टिक लोगों को होता है वो ये होता है कि वो अपनी इंटरनल अवेयरनेस उनकी कम होती है. मतलब मुझे अंदर से भूख लग रही है तो ये अवेयरनेस कम होती है. मुझे गुस्सा आ रहा है, आइडेंटिफाइंग एंड लेबलिंग दिस फीलिंग ऑफ बीइंग एंग्शियस, कि इसको एंजाइटी कहते हैं, या मैं इस टाइम बहुत सैड हूँ या उदास हूँ, इस अवेयरनेस को समझना, उनके पास वो अवेयरनेस कम है मैम. तो डीलिंग विद इमोशंस इज द नेक्स्ट. पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें इस टाइम कैसा फील हो रहा है. सो इंटरनल स्टेट ऑफ अवेयरनेस में जो उनके चैलेंजेस होते हैं, इंटेरोसेप्शन उनका म्यूटेड होता है. बहुत सारे लोगों का इंटेरोसेप्शन म्यूटेड होता है. इट्स वेरी कॉमनली सीन. In fact, 50% of the autistics have alexithymia. They are not able to label the exact feeling that they are going through, that they are experiencing. And so it's very natural कि उनसे डील करना वो तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है. जब लेबल नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उससे डील कैसे कर पाएंगे. सो जब आपने बताया कि एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस में योगा के थ्रू देखा गया है that there are some positive changes in the neuronal pathways that affect hippocampus and amygdala functions. So इसमें ये बहुत बड़ा फंक्शन है, कंपोनेंट है जो कि डीलिंग विद इमोशंस है. तो सेल्फ रेगुलेशन इज समथिंग दैट वी नीड टू टीच
नॉट जस्ट द ऑटिस्टिक्स बट ऑल्सो द नॉन ऑटिस्टिक पीपल। लेकिन सेल्फ रेगुलेशन जल्दी सीख जाते हैं, जो नॉन ऑटिस्टिक्स हैं वो सेल्फ रेगुलेशन जल्दी सीख जाते हैं। ऑटिस्टिक्स के लिए हमें उसको बहुत कॉन्क्रेटाइज करना पड़ता है, फीलिंग्स को भी कॉन्क्रीट तरीके से प्रेजेंट करके उन्हें दिखाना पड़ता है कि ये फीलिंग्स सारी ब्लू जोन में आती हैं, ये सारी फीलिंग्स येलो जोन में आती हैं। सो जब उनके लिए थोड़ा कॉन्क्रीट प्रेजेंटेशन करते हैं तब वो थोड़ा थोड़ा सीखने लगते हैं सेल्फ रेगुलेशन। बट नाउ दैट यू हैव गिवन अस दिस पावरफुल इंसाइट कि योगा के थ्रू भी हम एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Undoubtedly we are going to take this home today, that हम अपने बच्चों की हेल्प, हम अपने एडल्ट्स की हेल्प करेंगे by introducing and continuing. Thankfully Sunrise Learning के साथ Ankita ma'am is here. Ma'am Ankita ma'am is the instructor, yoga instructor at Sunrise Learning since last 5 years. And जब आपका नेटवर्क पुअर हो गया था तो हम यही बात कर रहे थे कि जब हमने स्टार्ट किया था we didn't know कि हम कैसे सिखाएंगे डीप ब्रेथ कैसे लेना है। And now the students have come such a long way. They have learned to self-regulate. That's beautiful. But seeing that on your research plate, कि ये research से prove किया गया है that this is how it is working, gives us so much more motivation, gives us so much more clarity कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और अब हम और ज्यादा क्लैरिटी के साथ और ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ और ज्यादा मोटिवेशन के साथ कर पाएंगे वो सारी चीजें। एंड जो चीजें अभी तक हमने ट्राई नहीं की वो भी अब जरूर करेंगे। बिल्कुल। एंड आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज सोनाली, पेरेंट्स को भी सिखाओ, पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे करेंगे। Yes, ma'am. It's absolutely mandatory for the parents to attend the Saturday yoga. Okay, that's very important because they say there are some neurons known as mirror neurons. Yes. So what the parents will do, the child sees and senses that, and they will do it. They will imitate, and that will also improve the bonding, the social interaction with each other, which is absolutely, ma'am. So today it has been such an eye opener for each one of us that जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, what is the role of yoga and yoga is transformational. आपने हमें दिखाया कि DNA में changes हो जाते हैं. It is altering the DNA of an individual. Isn't that so amazingly beautiful? बिल्कुल. So yes, that's the power of yoga, and that's Dr. Reema Dada with us. So if any parents have any questions, please feel free to ask, ma'am. She's here with us today. She has taken out time from her extremely hectic schedule, and thank you, ma'am, for joining us today. What an honor. Sonali, it's such a nice work you are doing. Nothing can be better than this service. Nothing can be better, and it must be so fulfilling and enriching your life too. Thank you, ma'am. So any questions, please, participants? Okay, I think Anupama has a question. Anupama, do you have a question? Ma'am, in fact, I would like to ask both you, Dr. Sonali and Dr. Reema. First of all, thank you for this wonderful session. I was doing yoga with my son, but yeah, somewhere I had this doubt in my mind that, okay, how effective and how helpful it will be for him. But from today's session, now I don't have any doubts in my mind. And I'm going to take it more seriously rather than other things which I was trying with my son. And but yeah, our children also have a lot of difficulty in following the asanas and doing them properly, like synchronizing their movement with their breath, with their breathing. So how should we go about it, or should we just start with basics and let's see how it goes? Any tips for that? Yeah, matlab, though Ankita ji is there, but I would just like to emphasize that एक है कि जब आप योगा करो, आप केवल योगा ही करो, ये नहीं कि टीवी भी ऑन हो, उससे हमारा असर कम होता है। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, टीवी भी चल रहा है, प्राणायाम कर रहे हैं। जब योगा करते हो केवल योगा करो। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी कर सकते हो उतना करो। जैसे हमारा जब हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरू किया, वो कोई भी आसन नहीं कर सकते थे। थोड़ी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस जितना कर सकते हो उतना करो। और हम लोग इतना नहीं फोकस, एक्चुअली आसनास तो 1.5% ऑफ योगा कंप्राइज करता है। एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कंपोनेंट।
कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, मतलब मेन इज कि हम लोग केवल अच्छी तरह बैठ पाए, अपनी बैक को अलाइन कर पाए। मेन उसका आसन का यही होता है, आसन बैठना होता है कि हम बैठ पाए, कि हम ब्रीदिंग इफेक्टिवली कर लें और मेडिटेशन। जब हमने स्टडीज करी, एक ग्रुप था जो तीनों चीजें कर रहा था, आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन, और एक ग्रुप था जो केवल प्राणायाम और मेडिटेशन, हम मेडिटेशन को जो हम मेडिटेशन है वो भी हम प्राणायाम, मतलब उनको बस ब्रीदिंग, फोकस ऑन ब्रीदिंग ही कराते हैं। तो हमने ये देखा कि जो लोग केवल ये कर रहे थे प्राणायाम और मेडिटेशन, उनमें भी बहुत अच्छा असर आया, कंपेरेबली आया। आसन करना है, पर अगर वो उस पर इतना नहीं कि अगर हम ब्रीथ उसके साथ नहीं कर पा रहे तो हम छोड़ ही देंगे, नहीं, जितना भी कर सकते हो, जितना मैनेज कर सकते हो करो। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्राणायाम और मेडिटेशन, जो आप जितना जैसे भी आप मेडिटेशन करते हो, और बस हम मेडिटेशन तो हम यही कहते हैं, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, अपने ब्रीदिंग रेट को रिड्यूस करो। तुम्हारा एक्सलेशन को पहले तो आप बस ब्रीदिंग पे फोकस करो, धीरे धीरे 2-3 हफ्ते बाद आप कोशिश करो कि आपका जो, जब आप बाहर सांस छोड़ते हो वो लंबा हो एज कंपेयर टू इनसाइड। अपने पेट पे हाथ रख के 4 की गिनती से अंदर लो, मे बी 2 बारी थोड़ा रोको, और फिर छोड़ते वक्त 6 तक काउंट करो। अब धीरे धीरे करो, पर आप करो जरूर, और ये हो नहीं सकता चेंज ना हो। तो इतना मत करो कि ये आसन ठीक नहीं हो, जितना कर सकते हो। और अगर ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा, आप वो सब छोड़ दो, आप बस आसन करो और फिर ब्रीदिंग और प्राणायाम पे फोकस करो, जितना कर सकते हो, बट डोंट लीव इट, असर होगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम, जब हमने छोटे बच्चों के साथ स्टार्ट किया था योगा, तो हम भी इस चीज में स्ट्रगल आती थी कि उनको कैसे वो ग्रॉस मोटर एक्शन इमिटेट कर रहे हैं, तो साथ में वो ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते थे। और अभी भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स are not able to do it many a times, but then ultimately the bottom line is that we are modeling for them, all the teachers are modeling, the staff is modeling, the senior students are modeling, and the junior ones are watching them and trying, right? वो अगर 50% part of the asan भी कर पाते हैं, that is also an achievement for the younger ones, and senior ones में पिछले 4-5 साल में वो अब सीख गए हैं। सो हम ये सोचते हैं कि 3 महीने में सीख जाएंगे, 4 महीने में सीख जाएंगे, हो सकता है 3 महीने में कोई आसन सीख जाए और कोई आसन को 3 साल लग जाए सीखने में। बिल्कुल, अगर हम गिव अप नहीं करेंगे, कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, तो आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट द जीनोम, अबाउट द डीएनए। Let's not leave it midway. Let's keep doing it. I just want to add, Sonali, ऐसे करना चाहिए जैसे हम हर रोज खाना खाए बिना घर से नहीं निकलते, ब्रश करे बिना घर से नहीं निकलते, हम योगा करे बिना घर से नहीं निकलेंगे। ऐसे इतना दिनचर्या में डाल दो, चाहे आप 20 मिनट करो, पर करना जरूर है। और 20 मिनट तो जैसे आसन और वो पर, और प्राणायाम और ये जो बैठ के थोड़ा सा फोकस अपने, वो आप दिन में 3-4 बारी करो। ये हो नहीं सकता बच्चे में इम्प्रूवमेंट ना आए और आप लोगों में ना आए, सभी में ना आए। Thank you so much, ma'am. Wonderful session. Ma'am, can I share my experience with you all? Just 2-3 minutes. Please, sure. Yeah, good morning, ma'am. Thanks, Reema ma'am and Sonali ma'am. Of course, Ankita ma'am. Ma'am, I want to just share 5 minutes share one experience. Actually, I was in Mumbai. तो जब मैं जब पहले चेन्नई में थी, उससे जब मुंबई गई, माई वेट वॉज 85 किलो, माई शुगर वॉज 280, माई बीपी वॉज वेरी हाई, माई LDL कोलेस्ट्रॉल थायराइड वॉज वेरी हाई. देन वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज हियर ओनली, निर्मला मोमिन, आई स्टार्टेड गोइंग विथ मैराथन. स्लोली मैंने मैराथन शुरू किया. उसके बाद हमारे टाटा इंस्टीट्यूट के अंदर योगा क्लासेस शुरू था. धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग, आई टुक हर ऑल्सो. अभी प्रेजेंटली माई शुगर लेवल इज 100, my weight is 65, and thyroid जो शुगर का जो मैं टैबलेट लेती हूँ, it was 500, now I am taking 50 that I have to take, and yoga has changed my life. जैसे आपने अभी yoga has changed my life, मतलब I had a breathing issue. मैं बचपन से अस्थमा प्रॉब्लम था. मैं जब भी ठंड आती थी, my mom used to worry कि मेरी बेटी को क्या होगा. लेकिन when I started, I told you to do, आज तक 20 साल हो गया मुझे नहीं है. So that yoga has really changed my life. So I just want to share my experience with you all. And yes, it happens. Yes, it works. Yes. It's a routine. Thank you, ma'am. Thanks a lot, ma'am. Thank you.
So on that note, I think we can wind up this session. Rima ma'am, thank you so much for sharing those insights. I can never forget all the laboratories of AIIMS, jahan meri prime educational life beeti hai, and I can never forget your guidance and your mentorship in and your contribution in being who I am today. So thank you very much to all the participants, and thank you AIIMS, and thank you Dr. Rima Dada. Thank you, Sonali. Thank you so much for giving me this opportunity to interact, and I hope people adopt yoga and it brings about a profound impact on their lives in a positive way. Thank you so much. Yes. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, participants, for sharing your thoughts and experiences. Thank you, Moni. Thank you once again. Namaskar. Ankita ma'am, thank you so much, everyone. Bye-bye. Thank you. Bye, ma'am.